Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਟ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਐਂਡ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਐਂਡ ਪਾਰਟ 2 ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਫ A and B are two sets, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਨੇ A and B, then A intersection ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਹੈ A union B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ, A union B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ A ਤੇ B, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ A ਹੈ B। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। A ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ A ਯੂਨੀਅਨ B ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ A ਤੇ B ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ, A ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ, A ਨਾਲ, ਇਸ A ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 5। ਕਲੀਅਰ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ। A ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, 1 2 3 4 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ। A ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2, ਛੋਟਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ B ਲੈ ਲਿਆ 2 3, ਲੈਟਸ ਸੇ ਲੈ ਲਿਆ 2 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, A ਯੂਨੀਅਨ B ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। A ਯੂਨੀਅਨ B ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ, A ਤੇ B ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਤੇ 1 2 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 3। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ 4। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, A ਨਾ, ਤੇ A ਬੈਠਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ A ਇਜ਼ ਐਨੀ ਸੈੱਟ, ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ A ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆ A ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ A ਆ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼। A ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦਾ, A ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। A ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਆ A ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ A ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕਲਰ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕਲਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A ਤੇ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, A ਤੇ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਨ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕੀ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗੀ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ। A ਯੂਨੀਅਨ B, ਦੇਖੋ A, ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ B, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ, ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਬਸੈਟ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬਸੈਟ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਦੋ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਓ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੇਖੋ A ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 1 2 3, B ਲੈ ਲਓ 3 4, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ 3 4 5। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 2 3 4, ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੀ ਆ ਗਈ, ਓਨਲੀ 3, ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਸੈਟ। ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਆਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, 3 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸੈਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ B ਗਿਵਨ ਹੈ। A ਤੇ B ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਂਸਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। A ਐਂਡ B ਐਨੀ ਟੂ ਸੈੱਟ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ। A ਐਂਡ B ਐਨੀ ਟੂ ਸੈੱਟ, ਦੈਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ,
ए ਤੇ B ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਣਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਮੋਰਗਨਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि A इंटरसैक्शन जे B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ B, A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੀ ਮੋਰਗਨਸ ਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A ਤੇ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ डी मॉर्गन लॉ लगा दो कि ਹੁੰਦਾ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ A ਐਂਡ B ਆਰ ਟੂ ਸੈਟਸ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਨ A ਮਾਈਨਸ B, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ A, ਇਹ B, A B, A ਮਾਈਨਸ B ਮਤਲਬ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਂ A ਆ ਪੂਰਾ A ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ B ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ A ਮਾਈਨਸ B। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ A ਮਾਈਨਸ B, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, A ਆ ਲੈ ਲਓ B ਦਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸੀ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, B ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ A ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਨਾਲ। A ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਨਾ A ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੇਡ। ਸਾਂਝਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹਿੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ, A ਮਾਈਨਸ B ਵਾਲੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, A ਮਾਈਨਸ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲਓ, ਇੱਕ A ਲਓ, ਇੱਕ B ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਓ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ A ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਹੈਗਾ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਤੇ 2 ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ A ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABC, B ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BCD ਤੇ C ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABD। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਯੂਨੀਅਨ C, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। B ਯੂਨੀਅਨ C, B ਤੇ C ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਆਏਗਾ B C D, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ A, ਮੁੜ ਕੇ B ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, D ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ A ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ B ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੱਕ B ਆ ਗਿਆ, C ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, A ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ABC। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, A ਤੇ B ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਨ A ਯੂਨੀਅਨ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ A ਤੇ B ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ A ਆ B ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ A B ਸੈੱਟ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ A 1 2 3 ਲੈ ਲਓ, B ਵੀ 1 2 3 ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ A B ਦੇ, ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। 1 2 3 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਂਝੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ 1 2 3। ਸੋ ਜਦੋਂ A ਬਰਾਬਰ B ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 10th ਕੁਐਸਚਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, A ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, B ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ, A ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1 2 ਐਂਡ 5। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ B ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ। B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, 6 7 ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ 1 2 5 ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ 1 2 5 ਹੈਗਾ, 1 2 5 ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1 2 5 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 2 5 ਕੀ ਸੀ, A। ਸੋ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਤੇ B, ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, 5। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਲ ਸੈੱਟ। ਕੀ ਇਹ ਨਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਨਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0, ਇਟ ਕੰਟੇਨ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਟਰ 5। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਲ ਸੈੱਟ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਲ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, x ग्रेटर दैन 0 और x लेस दैन 0, या x तो ग्रेटर दैन वाले 0 नंबर लिखने, लेस दैन वाले, सो भी नल सेट है नहीं।
एक्स स्केयर इक्वल टू 4 वो आ जाएगा +-2 एक्स इक्वल टू 3 सो ये आ जाएंगे +2 -2 ਤੇ 3 सो ये भी नल सैट है नहीं। ये देखो एक्स स्केयर इक्वल टू -1 बन गया तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा √ प्लस माइनस √-1 यानी आयोटा इंटू यानी प्लस माइनस आयोटा आ गया। तो वो एक गल कह रहा है इत्थों तो मैं जो सॉल्व किया एक्स मेरे को की आ गया +- आयोटा आयोटा समझते हो ना ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ √ ਚ -1 ਆ ਜਾਵੇ ਆਇਓਟਾ ਬਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਇਓਟਾ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ +1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਕਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਲ ਸੈੱਟ 13 ਕੁਐਸਚਨ A ਤੇ B ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ A ਯੂਨੀਅਨ B ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ A एलीमेंट प्लस B दे एलीमेंट प्लस की हुंदा A इंटरसैक्शन B बट उन्हें बोलिया डिसजॉइंट है डिसजॉइंट मतलब ये वाला पोर्शन की है 0 सो यू A यूनियन B क्या गया ओनली n ऑफ A प्लस n ऑफ B सो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर n ऑफ A प्लस n ऑफ B। नैक्सट देखो A B C गिवन है ने असी फाइंड करना A इंटरसैक्शन B फिर यूनियन A इंटरसैक्शन C कुछ भी नहीं है देखो A तो B दी इंटरसैक्शन देखो आपस की हैगी ने किहड़े किहड़े साझे लिख लो 3 होर देखो 4 3 तो 4 चो साझे आ गए होर तो नहीं कोई हैगा 10 है 10 भी सी ठीक है 3 4 10 आ गए यदी मैं इंटरसैक्शन पता करनी A यूनियन C ना A इंटरसैक्शन C ना A तो C दी इंटरसैक्शन देखो किहड़े साझे है 4 दैन ओनली 4 सिर्फ की है 4 ये है साडे कोल एक बार दोबारा लिख लैंदे आ A इंटरसैक्शन B किहड़े हैगे ने 3 4 दैन 10 3 4 10 ओके दैन यूनियन फाइंड आउट करनी आपां A इंटरसैक्शन C ना A इंटरसैक्शन C A ते C दे विच साझा की हैगा आ A ते C दे विच 4 दैन बस 4 ही हैगा ठीक है फिर यूनियन की आ गई 3 4 10 है ना यूनियन च सारे लिखने होंगे बस रिपीट नहीं करना होंगे दोनों ने सो ऑप्शन नंबर ए आ गया। नैक्सट क्वेश्चन साढ़े कोल है A इज़ द सबसैट ऑफ B A सबसैट है B का दैन A यूनियन B के इक्वल टू होएगी देखो उन्हें बोलिया है कि A सबसैट है B का दैट मीनस ऑलरेडी A B चो निकलिया होया इन्नी गल क्लीयर है लेट्स एग्जाम्पल लेने A मैं ले लिया 1 2 एंड B मैं ले लिया 1 2 3 तो तुसीं मनदे हो कि A सबसैट है B का देखो तो ये निकलिया होया तो जे A सबसैट B का है तो A यूनियन B जो मैं कराँगी A यूनियन B करो की आ जाएगा 1 2 एंड 3 यानी अगेन B दे इक्वल ही आ रहा सो दैट मीनस A अगेन B दे इक्वल टू होएगा दैन ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। दैन अगेन बोल रहा A इज़ द सबसेट ऑफ B दैन वट इज़ द A इंटरसैक्शन B ओके आप अगेन सेम सैट लवांगे A सैट साडे कोल है 1 2 लेट्स से मनते हैं एंड B अगेन 1 2 3 बिकॉज आप A नू सबसेट लेना B का दैन दोनों की जो तुसीं इंटरसैक्शन कड्डोगे की आएगा इत्थे सबसेट का निशाना विच एलीमेंट सिर्फ 1 ते 2 है दोनों साझा की आया तो 1 ते 2 1 ते 2 आया दैट मीनस ए अगेन कि इक्वल टू आ गया ए दे सो इत्थों सिंपल आ जे ए बी का सबसैट है दैन यूनियन कि इक्वल टू आ रही बी दी बट जे ए सबसैट बी का है दैन इंटरसैक्शन कि इक्वल टू आ रही ए दे तुसीं इहनूं किसी भी तरह कर सकते हो कोई एडा इशू नहीं है। नैक्सट ए इज़ इक्वल्स टू एक तुम सैट दिता होया बी भी दिता दैन एन इज़ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी ये क्वेश्चन तक रहने दो बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सैट जो मैं अलग तो तुहानूं वीडियो जी बना के वो दसांगी कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे वो रिलेटेड सम करांगे फिलहाल इस क्वेश्चन आप स्किप करते हैं। नैक्सट इज़ A एंड B आर डिसजॉइंट देखो क्वेश्चन रिपीट है डिसजॉइंट मैं तुहानूं बोलिया जो डिसजॉइंट होन दैन इंटरसैक्शन की होंगी 5 दैन N A यूनियन B के इक्वल होएगा N A प्लस N B बिकॉज असीं दा फॉर्मूला किया वो इंटरसैक्शन माइनस होंगी बट इंटरसैक्शन 0 होगी क्योंकि डिसजॉइंट है सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दैन A तो B साडे कोल 2 सैट है A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A ये भी काट उस आ जाएगा कार्टीजियन प्रोडक्ट के विचों फिलहाल क्वेश्चन आप स्किप करने हैं A B C आर एनी 3 सैट ओके A B 3 तुहाडे कोल 3 सैट है दैन वट इज़ द A माइनस B इंटरसैक्शन C दैन सिंपल है ए डी मॉर्गन तो ही हो जाएगा A माइनस B इंटरसैक्शन का की बन जाएगा यूनियन A माइनस C सिंपल इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन ठीक है। सो ये होगा जो माइनस है ना इंटरसैक्शन यानी कि कन्वर्ट हो जाना यूनियन के विच। नैक्सट ये ऑप्शन से नैक्सट A B C साडे कोल 3 सैट्स है A क्रॉस B इंटरसैक्शन C अगेन कार्टीजियन च करांगे आपां
एन ए साढ़े को 3 हैगा, एन बी 6 हैगा, ए सबसैट है बी दा। ओके दैट मीनस ये 3 ਦੇ 3 एलीमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ है ना। यही मतलब हैगा ए ਤੇ बी ਦਾ सबसैट ਹੁੰਦਾ, मतलब ऑलरेडी ਇਹਦੇ जिन्ने भी एलीमेंट ਆ ਉਹ बी ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ है ना। दैन नंबर ऑफ एलीमेंट ए इंटरसैक्शन बी। ओके सो यही 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ किन्ने एलीमेंट होणगे 3। सिंपल है, जो समझने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं हैगा। ए च बोलता कोई 3 एलीमेंट है, बी च 6 एलीमेंट है, ए इंटरसैक्शन है बी सॉरी ए सबसैट है बी दा। हुण सबसैट मीन सबसैट ए सबसैट है बी दा, यानी कि ए ਜਿਹੜੇ एलीमेंट ਉਹ बी ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿੰਨੇ एलीमेंट ए च भी ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਖਣੇ, ਜਦ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਨਾ, दैट मीनस 3 एलीमेंट आ गए इंटरसैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ए ਸਾਡੇ ਕੋਲ है, ए ਦੇ ਵਿੱਚ 3 एलीमेंट ਹੈਗੇ ਨੇ, बी ਚ 6 एलीमेंट ਹੈਗੇ ਨੇ। ओके ए सबसैट है बी ਦਾ, दैन ए यूनियन बी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। देखो कोई रिपीट ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ कोई एलीमेंट रिपीट ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ नहीं ना। उन्हें बोलिया कि ए सबसैट है बी दा, दैट मीनस आ ਜਿਹੜੇ ए ਦੇ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨों एलीमेंट किस चों आए ने, बी चों आए ने, यानी दोनों पासे हैगे ने ऑब्वियसली है ना। तो जो ਆਪਾਂ यूनियन करांगे वो सेम वाले तो ना रिपीट होंगे, यानी ये 6 एलीमेंट आने। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर होएगा ना तो एग्जाम्पल लैके कर लियो। ए ले लियो 1 2 बी, हुण पर उन्हें 3 एलीमेंट के लेट से 1 2 3 लेने बी च 6 एलीमेंट है 1 2 3 तीनों है क्योंकि ए सबसैट बी का वो ये निकले यानी तीनों एलीमेंट वो सी 4 5 6 दोनों की इंटरसैक्शन कट के देख लो किन्ने एलीमेंट आएंगे सांझे, तीनों ही आएंगे, तीन ही होंगे। जो यूनियन कटोगे किहड़े आएंगे 1 2 3 4 5 6 6। सो नंबर ऑफ एलीमेंट यूनियन किन्ने रहेंगे 6, इंटरसैक्शन किन्ने रहेंगे 3। सो इदा भी तुसीं ट्राई कर सकते हो, इस तो सौखा मैथड नहीं मैनूं लगता कोई होएगा। होर ए बी सी आर एनी 3 सैट्स, ए माइनस बी यूनियन सी, अगेन वही होना ए माइनस बी यूनियन की बन जाना इंटरसैक्शन ए माइनस सी, डी मॉर्गन तो हो जाने। ए बी सी आर 3 सैट, अगेन ए बी सी साढ़े को 3 सैट है, ए इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन सी। पहला 3 एलीमेंट ले लियो तुसीं कोई, ठीक है। उदा भी इत्थे सिंपल ही हैगा, ये वाला पहला आपस हो जाएंगे, फिर ये आएगा तो फिर ये हो जाएगा। तुसीं लैके भी एलीमेंट ए बी सी 3 ले लेना, ठीक है ना। देख लेना कि बराबर आते हैं, कुछ ज़्यादा औखा नहीं है ये। अगेन उही वाला क्वेश्चन जो साढ़े को रिपीट हो रहा। हाँ इस क्वेश्चन के ना सच एक करैक्शन करनी है, ए इंटरसैक्शन बी यूनियन सी करके देखना तुसी, ए इंटरसैक्शन बी यूनियन सी। ओके सो इनू करके देखना। फिर क्योंकि ऑप्शन के प्रॉब्लम सी, दैन मैं आंसर चैक किया कि उत्थे आंसर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाली स्टेटमेंट सी, ठीक है। उत्थे सही स्टेटमेंट सी, थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत सी, सो इनू दोबारा सही करन। उही वाला क्वेश्चन इत्थे रिपीट होया, इत्थे यूनियन लैके तुसी इनू सॉल्व कर लेना, सिंपल आ, दैन तुहाडे को आ जाएगा आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी सबसैट ऑफ सैट एक्स। ए ते बी ना किसी सैट हैगा एक्स जिहदे सबसैट है ने। ए माइनस बी की ए यूनियन बी दे इक्वल टू होएगा, ए ते बी दोनों सबसैट है ने किसी होर सैट दे, दोनों सबसैट है ने। तो ये जरूरी है कि जिहड़ा ए माइनस बी हैगा आ वो तुहाडे कोल ए यूनियन बी दे होएगा, या ए माइनस बी ए इंटरसैक्शन बी दे बराबर होएगा, या ए माइनस बी जिहड़ा साडे कोल ए कॉम्पलीमेंट इंटरसैक्शन बी दे बराबर होएगा। सो जे वो किसी होर दे सबसैट आ, ए ते बी दोनों सबसैट्स है ने किसी सैट एक्स दे, ठीक है। जिदा इनू आप यूनीवर्सल मान सकते हैं, लेट्स से 10 तक है ने, तो बन गया 1 2, इनू मान सकते तुसी 2 3, ठीक है। इदा मान लें दोनों वो सबसैट हो गए। हुण ए माइनस बी यानी ए चो बी वाले माइनस कर दो, 2 माइनस कर देने आप कि ये यूनियन के बराबर बन रहा, नहीं पहला तो गलत हो गया। ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसैक्शन बी, अच्छा तभी वो बराबर नहीं बन रहा, दोनों सांझे नहीं। ए माइनस बी इक्वल टू ए कॉम्पलीमेंट, ए कॉम्पलीमेंट 2 छड्ड के बाकी जोड़े मर्जी बच जाएंगे ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी की गल, ए माइनस बी की बच जाएगा 1 ही बच जाएगा, वो इक्वल टू ए कॉम्पलीमेंट इंटरसैक्शन बी के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं बनता, आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। ए माइनस बी ए इंटरसैक्शन बी का कॉम्पलीमेंट की होएगा, देखो ए माइनस बी का 1 हो जाएगा, बी का कॉम्पलीमेंट की हो गया, इनू छड्ड के बाकी जिन्ने बचनगे उन्हों की इंटरसैक्शन जो तुसी ए ना करोगे वो 1 आ जाएगी ना। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन हैगा या साढ़े को ए एन दिता, एन नैचुरल नंबर आ, एक्स बिलोंग्स टू एन, ए एक्स टाइप के एलीमेंट है ने, सैट 3 एन
एंड 7 3n का मतलब है कि 3 दे मल्टीपल 7 का मतलब है 7 दे मल्टीपल दोनों की इंटरसैक्शन कड्डोगे उसले तुसीं एलसीएम लैके देख लेना कॉमन फैक्टर उन्होंने किहड़ा आंदा 3 ते 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 21 सो 21n तुसीं करके भी देख लेना 3 दे मल्टीपल का सारा सैट बना लेना एक 7 दे मल्टीपल का सारा सैट बना लेना देखो 21 के जो मल्टीपल है वही कॉमन निकलेंगे उन्होंने करके भी देख लेना। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट सैट सच दैट ए यूनीअन 1 2 एक सैट है इदा सानू 1 2 3 यानी ये जो यूनीअन कढ़ते पे हैं नाल 3 4 5 3 5 9 भी है ਇਹਦਾ मतलब कि ए की होएगा देखो सिंपल आ यूनीअन ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ आंदा यानी 1 2 बाकी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 5 9 ਇਹਦਾ मतलब ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ए ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 33 ए ਤੇ b ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਮਾਈਨਸ a ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਬਣਾ ਲਓ b ਮਾਈਨਸ a ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਜਾਨੀ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ b ਮਾਈਨਸ a ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ a ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ a ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ 5 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲੈਟ s ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੈਨ ਸਬਸੈਟ ਆਫ s ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n कितने एलीमेंट है कि 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 दैट इज़ 32 आंसर आ जाएगा। सिंपल है सबसेट आना टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट च जिन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट है 2 रेज़ टू पावर कर देना। लैट ए ते बी साडे कोल दो सैट है ने सच दैट एन ए ते एन बी सानू नंबर ऑफ एलीमेंट दिते आ एन ए च 70 है ने बी च 60 है ने उन्होंने यूनीअन 110 हैगी आ। इंटरसैक्शन फाइंड आउट करनी कितना ईजी फॉर्मूला तुहानू दस्सिया होया मैं यूनीअन इक्वल टू की हुंदा ए यूनीअन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट ए दे प्लस बी दे ते इंटरसैक्शन चो की कर देनी आप माइनस कर देनी सो कर लेना खुद बहुत ईजी है कर चुके दा क्वेश्चन आप विच सैट इज़ द सबसैट ऑफ ऑल सैट हाँ जी किहड़ा सैट सारियां दा ही सबसैट हुंदा तुहानू पता है दस्सिया सी मैं एक कि 5 जिहड़ा है ना एम्पटी आ वो सारियां दा सबसैट हुंदा 5 जिहड़ा है सो इन्हां चों खाली किहड़ा सैट हैगा ये किहड़ा डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ठीक है क्योंकि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट याद रखियो एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट सो हर सैट का सबसेट हुंदा ही हुंदा ठीक है इस करके आ गया डी ऑप्शन जिहड़ा एम्प्टी वाला हैगा ਇਹਦੀ रिप्रजेंटेशन दो ही तरीके नाल करदे या तो सिंपलीफाई लिखते हैं या सैट नूं इदां छड्ड देने खाली। सैट ऑफ द इंटैलीजेंट स्टूडेंट इन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ इंटैलीजेंट स्टूडेंट हैगे ने उन्हां दा सैट की हुंदा नल सैट सिंगलटन सैट फाइनाइट या नॉट अ वैल डिफाइंड कलैक्शन सैट की डेफिनेशन की सी ना वैल डिफाइंड कलैक्शन ये वैल डिफाइंड नहीं है इंटैलीजेंट क्लास किहड़े बच्चे इंटैलीजेंट ने कि वैल डिफाइंड है कि वो इंटैलीजेंट ही रहने यूनीवर्सल ट्रुथ है नो सो इस करके ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कि इंटैलीजेंट जो स्टूडेंट है क्लास इज़ नॉट अ वैल डिफाइंड कलैक्शन। नैक्सट है जी क्वेश्चन ए तो बी गिवन है ये बहुत इंटरस्टिंग क्वेश्चन है देखो ये तो एक कॉन्सैप्ट क्लीयर होएगा देखो ए ते बी जड़ा ना ए डिवाइड बाय बी का मतलब की हम देखो ए डिवाइड बाय बी का मतलब हैगा ए इंटरसैक्शन बी अगेन दस रही हैं ए डिवाइड बाय बी का मतलब की है ए इंटरसैक्शन बी ओके हुण जे तुसी ए इंटरसैक्शन बी पहला निकाल लो तो किहदे बराबर आ रही है ए तो बी च साझा की आ रहा 1 ते 2 आ रहा यानी बी के बराबर ही आ रहा यानी जी ए इंटरसैक्शन बी सॉल्व करके बी के बराबर ही आ गई सो असीं करते हैं ए डिवाइड बाय बी का मतलब की हुंदा ए इंटरसैक्शन बी बट ए इंटरसैक्शन बी आ के बराबर ही बी के बराबर ही तो ए डिवाइड बाय बी मतलब की होंदा ए इंटरसैक्शन बी सो बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मैं अगेन समझा दिनी हाँ कि ए डिवाइड बाय बी का मतलब होंदा ए इंटरसैक्शन बी सो आ गया ए अपॉन ए इंटरसैक्शन बी बट ए इंटरसैक्शन बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो असीं कढ के देखी कि बराबर आ गई बी दी सो ए बाय बी होनी दस्सिया ए बाय बी का मतलब की होंदा ए इंटरसैक्शन बी सो राइट आंसर इज़ द ए इंटरसैक्शन बी। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर हो गया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी लैट ए ते बी साडे कोल दो सैट है ने सच दैट ए यूनीअन बी इक्वल टू ए ओके ए ते यूनीअन बी जो यानी ए ते बी नूं यूनीअन की ए दे बराबर है यानी ये दोनों बराबर सी दैन इंटरसैक्शन उन्हां दी की आएगी आपस जी उन्हां दी यूनीअन बराबर ए दे आई हैगी आ दैन इंटरसैक्शन जिहड़ी आ वो किहदे बराबर आएगी सोच के देखो इंटरसैक्शन की होगी इंटरसैक्शन किहदे बराबर आएगी उन्हां च साझा की आएगा ऑब्वियसली ना यूनीअन बराबर जे ए दे आ रही दोनों की यूनीअन यानी कि एक देखो ए मेरे को है 1 2 3 ठीक है बी मेरे को है 3 4 5
3 4 5 ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। क्यों? क्योंकि इन्हों की यूनियन जी वो कट्ठी होकर कि बराबर आनी चाहिए, ए बराबर ही आनी चाहिए है। दैट मीनस ये सेम ही होंगे 1 2 3 कह सकते आप बराबर ही होंगे ना। सो इन्हों की यूनियन जो आप की आ गई 1 2 3। या एक तरीका होर है, देखो एक तरीका होर है कि जे बी साढ़े को खाली हो एम्प्टी हो भी आ सकती ना ये बराबर। तो जो आप साझा कटांगे दोनों च कुछ साझा कटांगे, देखो ये फिर यदा ऑप्शन ही मैच करनी ए यूनियन बी बराबर ए आप इदा ले लें। ए मेरे को एक सैट है 1 2 3, बी मैं ले लेनी एम्प्टी। दोनों की जो यूनियन कटांगी वो की आएगी 1 2 3। तो फिर जो साझा कटांगे उन्होंने की आएगा एम्प्टी। मैं दस ना एम्प्टी तो सारे होंगे ही होंगे। सो 5 इज़ द राइट आंसर। सो इस अकॉर्डिंग क्योंकि जो मैं दूसरी तरह लेंदी फिर ए बराबर भी आ रहा सी, बी के दोनों ऑप्शन से। सो इस करके इतने कंडीशन कि होल्ड करेगी कि तुम बी नू खाली ले लो सैट। जो आप खाली लवेंगे क्योंकि ए यूनियन बी बराबर ए दे बराबर, क्योंकि फिर जो जे तो मैं दोनों बराबर लेनी है तो ए यूनियन बी बराबर बी दे भी तो है आ ही रही है ना, ठीक है ना। सो वो वाली कंडीशन फेल हो जाती जो मैं पहली लै रही सी। बट जे मैं दूसरी कंडीशन लवां कि ए नू मैं कोई सैट लै लवां, लेट्स से ए बी सी ले लिया, तो बी नू मैं खाली लै लवां एम्प्टी सैट लै लवां, तो दोनों की यूनियन जो करके आएगी यही आ जाएगी, ए दे बराबर ही आ जाएगी है ना। तो बट जो मैं दोनों साझा कड्डांगी, साझा की होगा खाली जगह साझी, खाली तो इतने हुंदी हुंदी अंदर, ठीक है। एम्प्टी तो पढ़िया सी ना, एम्प्टी जोड़ा सैट हैगा इज़ द सबसैट ऑफ एवरी सैट, ठीक है। एम्प्टी का होएगा। सो ये आएगी 5। स्मॉलेस्ट सैट ए सच दैट ए यूनियन 1 2 इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 9। कितना ईजी है, मैं इन्होंने क्वेश्चन करा के तुम ये 1 तो 2 है। सो 1 तो 2 इतने आ गया, यूनियन करके जो बाकी बचे 3 5 9 वो कितों आए होने, ए च ही आए होने। सो बी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक्स एंड वाई आर 2 सैट, एक्स तो वाई 2 सैट है ने साढ़े कोल। दैन एक्स इंटरसैक्शन वाई यूनीयन एक्स का कॉम्पलीमेंट, ओके ये एक्स आ ये वाई हैगा। हुण वाई दी यूनीयन एक्स, वाई यूनीयन एक्स की होएगा, पहला तो ये देख लो, ये पूरा कलर चेंज करते हैं, ये पूरा वाई यूनीयन एक्स हो गया, कॉम्पलीमेंट की हो गया। इस तो बाहर वाला जो बचता ये वाला, ਇਹਦਾ मैं साझा कढ़ना एक्स के नाल, ਇਹਦਾ साझा कितना करना ये एक्स के नाल। आया दोनों च कोई साझा, कुछ भी नहीं आया। सो आंसर की आ जाएगा 5, ठीक है जी। जिदा मर्जी कर लेना, तुम एक्स वाई सैट लैके करना कर लियो। कॉम्पलीमेंट जो आए यूनीवर्सल सैट जरूर ले लिया करो, क्योंकि कॉम्पलीमेंट की है यूनीवर्सल चों असी वो वाले माइनस करने, बाकी जो बचता वो कॉम्पलीमेंट होता है। जो एक्स का कॉम्पलीमेंट मतलब एक्स वाले यूनीवर्सल चों कढ़ दो, कॉम्पलीमेंट मैं दस चुकी हाँ। नैक्सट ए सानू गिवन हैगा बी दिता, ए डेल्टा बी फाइंड करना। ए डेल्टा बी की होंदा साडे कोल ए माइनस बी यूनीयन बी माइनस ए फाइंड करना। मैं दसिया ही तुहानू पहला इहदा मतलब की होंदा, हुण करके देख लैंदे आ। पहला ए यूनीयन बी फाइंड आउट, ए माइनस बी फाइंड आउट कर लो। ए माइनस बी मतलब ए दे विचों बी वाले कट दो, 2 3 4 बी है ना। सो कट दो, इधरों की बच गया 1। ये यूनीयन कढ़नी मैं बी माइनस ए ना, बी दे विचों ए वाले कट दो, 2 3 4 कट दो, 5 तो 6 बचिया, 5 तो 6। सो दोनों की यूनीयन लो की बन गया 1 5 6। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्लियर, सौखा सीगा। नैक्सट क्वेश्चन मूव कर दिए। ए ग्रुप ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ओके ब्यूटीफुल गर्ल्स का जोड़ा ग्रुप है नल सैट, नल सैट नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल गर्ल्स होंदियां। फाइनाइट सैट कि फाइनाइट होंदियां, इनफाइनाइट सिंगलटन इक्को ही होंदियां, ये भी गलत है ना। पता नहीं इनफाइनाइट सानू की पता कितनी है। नॉट अ सैट, ये सैट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैट इज़ ऑलवेज अ कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड, बिल्कुल वैल डिफाइंड तुहानू ऑब्जैक्ट्स चाहिए ने, ठीक है ना। हुण किसी के अकॉर्डिंग कोई ब्यूटीफुल है, किसी के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है ना। हर एक लिए ब्यूटीफुल की डेफिनेशन अलग आ। सो दैट इज़ नॉट अ यूनीवर्सल ट्रुथ। सो इस करके इट इज़ नॉट अ सैट। नैक्सट, ए इज इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स इज़ अ लेटर इन अ वर्ड अकाउंटेंसी, दैन द कार्डिनैलिटी ऑफ ए। मैं दसिया सी कार्डिनैलिटी का मतलब की होंदा, कार्डिनैलिटी का मतलब होंदा नंबर ऑफ एलीमेंट्स, ठीक है। एक्स की आ ये लैटर के वर्ड, हुण देख लो बना लो एक सैट, ये लैटर के वर्ड आ गया ए, उस बाद सी, उस तो बाद रिपीट तो होना नहीं ओ, उस तो बाद यू, उस तो बाद एन, उस तो बाद टी, ए रिपीट नहीं होना, एन फिर रिपीट नहीं होना, सी नहीं रिपीट होना, वाई। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उन्हें बोलिया सी एक्स, एक्स इज़ द लैटर ऑफ वर्ड इस लैटर दे। ये सैट की है जिस वो लैटर है ने जी इस वर्ड के लैटर लिख लो, रिपीट ना करियो। कार्डिनैलिटी का मतलब मैं तुहानू दस्सिया सी कल नंबर ऑफ एलीमेंट्स काउंट करने होंदे आ। नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करते हो। इन्हां तुहाडे बहुत सारे कंसैप्ट्स क्लीयर होणगे नाल। एन ए दिता 50, एन बी इज इक्वल्स टू 20, एन ए इंटरसैक्शन बी 10, दैन एन इक्वल टू ए डेल्टा बी। ओके, ए डेल्टा बी नंबर ऑफ एलीमेंट फाइंड आउट करने असी। ए माइनस बी यूनीयन
बी माइनस ए वाले दे नंबर ऑफ एलीमेंट फाइंड करने। अच्छा ठीक है, ए माइनस बी का मतलब की होंदा, देखो ए है तो बी, ए माइनस बी का मतलब आ पूरा ए है ना जिहड़ा, इहदे विचों बी वाला माइनस कर दो, इन्नी चीज़ हुंदी कि इंटरसैक्शन ही हुंदी आ, यानी मैं टोटल ए दे विचों इंटरसैक्शन कढ दवां, ए माइनस बी बचेगा। हुण ए दे टोटल एलीमेंट किन्ने सी 50, इंटरसैक्शन किन्नी है 10, 50 चों मैं 10 माइनस कर दवां, किन्ने बच गए 40। ओके, उस तो बाद मैं यूनियन पता करनी बी माइनस ए ना, आप पूरा बी है बी च मैं ए वाले माइनस कर दें जो इन्ने है कि इंटरसैक्शन है, यानी बी जो 20 है वो इंटरसैक्शन कितनी हैगी आ 10 माइनस कर दो, किन्ने बचते साढ़े को 10 ही बचे। सो इधर 40 एलीमेंट, इधर 10, यूनियन किन्ने हो जाएंगे 50। क्लियर है जी। सो 50 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट है जी बड़ा इंटरस्टिंग क्वेश्चन, ए माइनस बी दिता होया तो नंबर ऑफ एलीमेंट 25 प्लस एक्स, बी माइनस ए तो 2x, एन ए इंटरसैक्शन बी दे 2x, एन ऑफ ए इक्वल टू, ओके ये वैन डायग्राम तो बहुत वधिया समझ आएगा। सो आप वैन डायग्राम तो करने की कोशिश करते हैं। ओके कलर चेंज कर दिया, हम देखते हैं। देखो ये ए है, लेट्स से दिस इज ए और दिस इज बी। ध्यान ना समझना इस क्वेश्चन, वो बोलता नंबर ऑफ एलीमेंट ऑफ ए इक्वल टू डबल ऑफ नंबर ऑफ एलीमेंट ऑफ बी। पहला इन्हां तो आप किद्दां डिफाइन करिए ए ते बी, इस चीज़ तो तुहानूं इन्ना पता ना ए माइनस बी का मतलब की आ, ए माइनस बी का मतलब की आ जी पूरी ए है ना, ये विचों आ जी बिचली इंटरसैक्शन आ, ये इंटरसैक्शन है ये माइनस कर दिए तो साडे कोल इधर जी चीज़ बचेगी वो ए माइनस बी बचेगी। इदां आप टोटल जोड़ा बी हैगा आ वाला पूरा बी, ये विचों मैं आ वाली इंटरसैक्शन माइनस कर देवां तो की बचेगा बी माइनस ए। इन्नी गल क्लीयर होई ना, तुहानूं इन्नी गल क्लीयर आ, यानी कि जे मैं एन ऑफ ए लिखना मैं की करा ये पूरे ए दे विचों की माइनस करा इंटरसैक्शन। क्लीयर जी, तो मेरे को अपने आप एन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है चलो हम लिखते हैं, आई थिंक तुहानूं क्लीयर हो गया। सो एन ऑफ ए का मतलब की आ कि मैं की करा ए दे विचों जिहड़ा हैगा, सॉरी हाँ एन ऑफ ए, ये देखो एक बार फिर मैं दस दी तुहानूं, इत्थे एक चीज़ दसनी सी, ये इंटरसैक्शन है जो अगेन ये चीज़ बनानी ए दे विच की आ रहा ए माइनस बी प्लस आ रही इंटरसैक्शन। ध्यान नाल देख लो एक बारी, मैं पूरा ए बनाना, मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी हाँ, जो इन्ना हिस्सा बचदा ना ये की है ए माइनस बी, यानी कल्ले ए दे विच कल्ला ए आ, ए चो बी वाल निकल गए। तो जे मैं उहदे विच आ इंटरसैक्शन जिहड़ी है जोड़ देवां, आ इंटरसैक्शन होंदी ना गबली दोनों की, ये जे मैं इहदे विच जोड़ देवां तो ये पूरा की बन जाएगा, मुड़ के ए ही बन जाएगा। सो आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया। इद्दां हैगा दूसरे पासे ए बी है, ए हैगा बी माइनस ए, जे ये मैं इंटरसैक्शन जोड़ दें की बन जाएगा बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ओके सो हुण ए नूं किद्दां लिख सकते आपां, ए नूं किद्दां लिख सकते आपां एन ऑफ ए माइनस बी, उहदे विच की प्लस कर दो इंटरसैक्शन। ओके इनू डबल ऑफ लेना तुसी एन ऑफ बी नूं मैं की लिख सकती हाँ नंबर ऑफ एलीमेंट बी माइनस ए दे प्लस की करनी उहदे विच इंटरसैक्शन। ठीक है जी, ए इंटरसैक्शन बी लिखना, बी इंटरसैक्शन ए लिखना, लिख लो। क्लीयर हो गया। सो वैल्यूज़ पुट कर दो, करिए पुट। एन ऑफ ए नूं की आपां डिफाइन किया सी ए माइनस बी प्लस करनी इंटरसैक्शन ए 25 प्लस एक्स प्लस करनी इंटरसैक्शन कितनी दी हो 2x इक्वल टू डबल टाइम्स बी माइनस ए प्लस सोच करनी इंटरसैक्शन। सो ये आ गया 2 टू द 2 ते 2 4 4 टू द 8x इधर आ गया, इधर 25 प्लस 3x आ गया, ये 3x उधर ला जाओ कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 5x, तो x कितना आ गया 5 आंसर आ गया, सिंपल है। सो बी आंसर इज द राइट आंसर। मतलब वैन डायग्राम दिमाग से जिन्नियां क्लीयर होंदियां जाणगे उन्नी जल्दी क्वेश्चन होंदे जाणगे कि किद्दां रिलेशन बनाने हैगे ने। कुछ क्वेश्चन औखा नहीं सीगा, सिंपल उन्हें दिता सीगा। ये साडे कोल ए हुण पूरा ए हैगा ना, बस हुण तुहानूं इत्थे क्लीयर भी हो गया होगा कि आह वाली चीज़ नूं असीं की बोलदे ए माइनस बी, तो इस वाली चीज़ नूं की बोलदे बी माइनस ए। जे असीं मुड़ के पूरा बी बनाना तो बी माइनस ए च तुसीं आ इंटरसैक्शन की करो जोड़ दो, जे ए पूरा बनाना इद्दां ए माइनस बी च इंटरसैक्शन जोड़ दो। ठीक है, जगह कवर हो जाएगी। नैक्सट देखो भी बहुत इंटरस्टिंग क्वेश्चन है। यूनीवर्सल 60 है ने तुहाडे कोल एलीमेंट 60, ए दे विच 21 है ने, बी च 43 है ने। तुसीं ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी, ग्रेटेस्ट वध तो वध वैल्यू कितनी होएगी ए यूनियन बी दी, ते लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तुसीं सिंपल दिमाग लगा के उदा भी कढ़ सकते हो, तुसीं उस फॉर्मूले तो भी कढ़ सकते हो ना साडे कोल ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। तुसीं आप दसो ये जी वैल्यू मैक्सीमम कदों हो सकती है, ए यूनियन बी वध तो वध कदों हो सकता जो आ चीज़ 0 हो जाए। ठीक है ना, यही तो इधरों इन्हों चो यही तो माइनस हो रही है, जे 0 माइनस होएगी तो मतलब ये आंसर आएगा मैक्सीमम आएगा, यानी कि मैक्सीमम हो लिए इंटरसैक्शन की होना पैना 0 होना पैना, ताही वैल्यू मैक्सीमम आएगी ना। समझते गल नूं,
क्योंकि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए यूनियन बी इंटरसैक्शन बी, जे इंटरसैक्शन बी ही जीरो हो गया तो ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आंसर होएगा। ठीक है, सो पहली कंडीशन ये बनती कि एन मैक्सिमम वैल्यू तुसी एन ए प्लस एन बी कर दो, यानी 21 + 43 कर दो, 21 + 43 ओके कर देने 21 + 43 कितना आ गया 64। ओके तुसी बोलोगे 64, 64 तो ऑप्शन जी है नहीं ग्रेटेस्ट वैल्यू। तुसी आप देखो यूनीवर्सल कितना हैगा 60, साढ़े को टोटल वैल्यू कितनी आई 64, यानी जो 4 एलीमेंट हो गया कॉमन है ने, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 60। क्लीयर, हुण इस कॉन्सैप्ट भी समझ लो, मैं तुहानूं एक होर कॉन्सैप्ट दस दी, ये तो सौखा सी, ये वाला वैसे बहुत सौखा सी। हुण तुसी देखो ए यूनियन बी फाइंड आउट करनी, ये तुहाडे कोल ए हैगा, ये तुहाडे कोल बी हैगा, ये हैगा 21, ये हैगा 43, पूरा यूनीवर्सल जिहड़ा कितना हैगा 60। तुसी यही मन के चलोगे कि असी चाहते हैं जी कोई भी इन्हां च जिहड़ा एलीमेंट आ मतलब कि सारे दे सारे आ जाण, है ना, टोटली आ जाण, मतलब 43 ए वाले ते 21 ए वाले आ जाण। ठीक है, जो ये दोनों अलग अलग होणगे मैक्सिमम मतलब अलग अलग हैगे ने, दैट मीनस वही साडे कोल मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी पूरे का पूरा यूनीवर्सल ही आ जाए, वही हो गया। सो इस करके ये कितना आ जाएगा 60। क्लीयर, ओके। लीस्ट वैल्यू की गल करते हुण घट्टो घट्ट किन्ने आएंगे, घट्टो घट्ट जिन्नी इंटरसैक्शन वधी जाएगी उन्नी वैल्यू की होएगी, घट्टो घट्ट तो वध तो वध इंटरसैक्शन ये किन्नी हो सकती, तुसीं आप दसो वध तो वध इंटरसैक्शन किन्नी हो सकती 43। ठीक है, वध तो वध इंटरसैक्शन यही साडे कोल जा सकती है, सॉरी 21 इंटरसैक्शन ही दोनों च, इधर 21 एलीमेंट है ने तो उधर भी 21, सो 60 माइनस कर दो 21, तुहाडे कोल कितना आ जाएगा, सॉरी ए साडे कोल है ए, दिस इज़ द बी, आपां लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी ए यूनियन बी, यानी ए इंटरसैक्शन बी वध तो वध हो जाए। ठीक है, वही केस एक हो सकता। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ किन्ने एलीमेंट्स कंटेन हो जाएंगे, देखो 43 के अंदर 21 आ सकता या 21 के अंदर 43 आ सकता, 43 के अंदर कितना आ सकता 21, यानी वध तो वध इंटरसैक्शन कितनी हो सकती 21, यानी एन ए प्लस एन बी माइनस तुसी ये जी इंटरसैक्शन करनी वो 21 माइनस कर दो, यानी 21 + 43, 21 + 43 माइनस कर दो 21, कितना बच जाएगा 43। सो ये आंसर राइट आ जाएगा। थोड़ा जिहा दिमाग जहा लगना, होर कुछ नहीं हैगा कि मैक्सीमम यूनीवर्सली कंटेन हो गया, मिनीमम दे विच पूरी दी पूरी इंटरसैक्शन लियो। ठीक है, मैक्सीमम इंटरसैक्शन लियो, वो खत्म कर दो। ठीक है, कई ना इनू इदा याद रखते हैं, देखो बस जे किसी को ज़्यादा हो ना, बहुत सिंपल वर्ड दे विच ये याद रख लियो, ये मैं फॉर्मूला लिखा, ए दी वैल्यू जो 0 हो गई ना तो उदों दी वैल्यू मैक्सिमम आ गई, जो 0 हो गई तो साढ़े को 64 आ गया सी, बट टोटल एलीमेंट 60 है, यानी 60 तक जाऊगा मैक्सिमम के। मिनीमम लिए वैल्यू मैक्सिमम कर दो, मैक्सिमम इंटरसैक्शन हो के नहीं सकती है, किन्ने सांझे हो सकते पूरे के पूरे ले लो 21 नहीं, 43 तो मैं नहीं लै सकती ना, क्योंकि सांझे होंगे जो दोनों पासे हो, जो दोनों पासे 21 43 अंदर 21 कंटेन हो सकता ना, सो तुम इतने 21 माइनस कर दो, मैक्सिमम जो दी वैल्यू होगी मिनीमम हो जानी, तो मिनीमम आई मैक्सिमम हो जानी, समझते ईजी है। ओके नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। If a set of a factor of a whole number including n itself but not 1 denoted by fn, मतलब कि तुसी लै रहे हो ये सारे एलीमेंट लै रहे हो, ठीक है, ये 1 नहीं लै रहे हो, ठीक है, सारे सैट सारे फैक्टर लै रहे हो होल नंबर के 1 नहीं लैना, ये फिर 16 ते 40 वो फैक्टर्स जोड़े होंगे उन्हों की आपस के इंटरसैक्शन, ये फैक्टर कर लो किन्ने बन गए 2 to the 4 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये बन जाएंगे, इधर की बन जाएंगे 40 दे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू की बन जाएगा 5। सो कॉमन किन्ने आ गए इंटरसैक्शन 3 ही आ गए ये वाले, सो 8 आ जाएगा आंसर 2 to the 4 to 8। सो सिंपली सीगा, कुछ ज़्यादा औखा नहीं, 1 तो आ ही नहीं रहा सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इंटरसैक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 एंड बी इंटरसैक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 6, ए इंटरसैक्शन बी इक्वल टू 4 दैन वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तुसीं ना ये वाली डायग्राम बना लो, ज़्यादा वधिया रहेगा। ए इंटरसैक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहला देखो ए हैगा साडे कोल ए, आ वाली चीज़, बी का कॉम्प्लीमेंट की हुंदा बी नूं छड्ड के जो भी बचिया, आ बी नूं छड्ड दो जो भी बचदा, दोनों च सांझी देखो किन्नी चीज़ आई, आही चीज़ आई बिच वाली इन्नी, इनू की कहने आपां ए माइनस बी। ठीक है, यदि तो बी इंटरसैक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट की करोगे तो की आ जाएगा बी माइनस ए, इन्नी गल तो हुण तुहानूं क्लीयर होगी, नहीं ए माइनस बी तो बी माइनस ए दी तुहानूं वैल्यूज़ गिवन हैगी हैं।
तो इंटरसैक्शन भी गिवन हैगी है, तुसीं फाइंड आउट की करना है ए यूनियन बी। मैं अगेन बनाने लगी हाँ। ए साडे कोल वैल्यू कितनी दित्ती 5, इंटरसैक्शन कितनी दित्ती तुहानूं 6, तो ए कितना दिता 6। फाइंड की करना तुसीं, फाइंड की करना हैगा आ ए यूनीअन बी। कितना ईजी हैगा, किदा फाइंड आउट कर सकते आपां। साडे कोल फॉर्मूला हुंदा ना, पहले तो इत्थे ए बना लो, 6 ते 5 कितने हो जाएंगे 11, बी कितना हो जाएगा 6 ते 6 12, एन ए एन बी निकल गया। की फॉर्मूला यूनीअन दा एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसैक्शन की कर दो माइनस 12 ते 11 कितने हुंदे आ 23, 23 माइनस 6 कितना हुंदा साडे कोल 8। सो राइट आंसर इज, सॉरी आई थिंक कोई गलती हो गई है ऑप्शन साडे कोल है नहीं, असीं की गलती की दोबारा देख लीए। ए इंटरसैक्शन बी का कॉम्पलीमेंट आया सी साडे कोल ए माइनस बी, यानी ये चीज़ सानू गिवन सी 5, ए सी 6, ओहो इत्थे 4 सी, सॉरी गलती ना इत्थे मैं 6 लै लिया, ए इंटरसैक्शन बी कितना सी 4, ठीक है ये गलती हो गई बस। 5 ते 4 साडे कितना हो गया 9, 6 ते 4 कितना हो गया 10। सो ए बी दे निकल गए टोटल, ए दे निकल गए। हुण साडे कोल यूनियनली फॉर्मूला कि ए प्लस बी माइनस इंटरसैक्शन, यानी कि 19 माइनस 4 15 आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई सी, इत्थे मैं ए इंटरसैक्शन बी गलती ने इत्थे 6 ले लिया जबकि 4 गिवन हैगा। सो सिंपल है, देखो पहले तो मैं तुहानूं आ चीज़ समझाती कि ए माइनस बी हैगा। सो सानूं पता ए माइनस बी एरिया आ वाला हुंदा है ना, आह वाला। सो इनू मैं लिख लिया, ए कितना हो गया साडे कोल 5, ए बी इंटरसैक्शन इहदा कॉम्पलीमेंट मतलब आ वाला एरिया माइनस वाला 6, सिर्फ इन्ना सिर्फ इन्ना ये 6 है। इंटरसैक्शन इतनी 4, पहला मैं पूरा ए कढ़ लवां दोनों ऐड करके 5 4 9, ए कितना हो गया 6 4 10। तो हुण एन ऑफ ए भी टोटल निकल गया, बी भी यूनिट पता करनी, इंटरसैक्शन भी गिवन है फॉर्मूला कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इंटरसैक्शन, 10 + 9 माइनस इंटरसैक्शन कितनी है 4, इतने नाल तुसीं 4 की कर देना माइनस कर देना। सो 19 माइनस 4 15 साडे को किया जाना आंसर। नैक्सट टोटल दिते आ 48, ए च 28, बी च 33, बी माइनस ए 12, ए इंटरसैक्शन बी का कॉम्पलीमेंट फाइंड करना है। देखो हुणे मैं तुहानूं दस के हटी हाँ कि बी का टोटल का कॉम्पलीमेंट है। देखो कॉम्पलीमेंट मतलब यूनीवर्स चो माइनस हो जाना, तुसीं इंटरसैक्शन फाइंड आउट कर लो। ए साडे को कितना है 28, बी कितना है 33, लिख लो। आ टोटल ए तुहानूं कितना दिता होया आ 28, टोटल बी कितना दिता 33, टोटल दे विच उहने बी माइनस ए, यानी कि देखो इत्थे ध्यान नाल समझिओ, आ पूरा तुहानूं कितना दे दिता 33, तो उहदे विचों इन्ना हिस्सा बी माइनस ए, आ वाला हिस्सा कितना दस रहा की है 12, टोटल दे विचों 12 कढ़ दो, तुहाडे कोल इंटरसैक्शन ही निकल जाएगी। यानी 33 दे विचों मैं 12 माइनस कर दा, मेरे को इंटरसैक्शन निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। सो 33 माइनस 12 कर दो, कितना तुहाडे कोल आ जाएगा 21, यानी इंटरसैक्शन कितनी आ गई 21। तो असीं की पता करना इंटरसैक्शन का कॉम्पलीमेंट यूनीवर्स चों माइनस कर दो, जो भी कॉम्पलीमेंट पता करना मैं तुहानूं दस्सिआ, ओहदी वैल्यू यूनीवर्स चों माइनस कर दिया करो। सो 21 यूनीवर्स चों माइनस कर दो, यूनीवर्स कितना सी 48, यूनीवर्सल सैट, सॉरी यूनीवर्स बोल रही हूँ मैं, यूनीवर्सल सैट, ठीक है। उन्हें यूनीवर्स ही लै लो कोई गल नहीं, टोटली वो कंटेन हो जाएंगी सारिया चीज़ा। तो वो 21 की करो माइनस कर दो, 8 - 1 7, 4 - 2 2, 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इनू ध्यान रखना कि जो कॉम्पलीमेंट किसी चीज़ का किया ना, मतलब वो चीज़ फाइंड आउट कर लो, उन्होंने यूनीवर्स चो तुसीं माइनस कर दो। उन बैन डायग्राम तो समझोगे तो बहुत ईजी समझ आएगा कि उन्हें सिंपल ए दे एलीमेंट दिते आ, इधर तुहानूं टोटल बी दे भी देते, बी माइनस ए भी कह दिता, आ बी तुहानूं टोटल दे दिता, तो उहदे विचों आ इन्ना हिस्सा बी माइनस ए दस दिता, टोटल दे विचों इन्ना माइनस कर दोगे इंटरसैक्शन वाला ही बच जाएगा, ठीक है ना। सो नैक्सट देखते हैं, अ सेट इज़ अ डिवाइजर ऑफ नंबर 15, बी इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर smaller than 10 and C is a set of even number smaller than 9, then A union C intersection B। देखो सिंपल आ, ए जिहड़ा ना वो तुसीं डिवाइजर लैने आ ऑफ 15 दे किहड़े हो जाणगे 1 3 5, ए वाले हो जाणगे, ए च। बी दे विच लैने तुसीं प्राइम नंबर लैने बट लैस दैन 10, बी च लैने तुसीं, इत्थे नहीं लिखदे आपां, इत्थे लिखदे आ, बी च लैने तुसीं प्राइम नंबर लैस दैन 10, 2 पहला प्राइम नंबर होंदा, फिर 3 होंदा, फिर 5 फिर 7, ओके। सी च तुसीं लैने हैगे जी नंबर ईवन नंबर लैने स्मॉलर दैन 9, 2 4 6 ते 8 आ जाणगे। सो ये हो गया सी। हुण पहला तो ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लो, ए ते सी दा यूनियन की आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ते 8,
ओके इंटरसैक्शन ਇਹਦੀ पता करनी बी नाल इन्हां 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ आया एक 2 आया एक 3 ਤੇ एक 5 बस 2 3 5 आया ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इदा बस ਲਈ जाने तुसी यूनियन जो मर्जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करी जाना ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ प्रॉपर सबसेट ओके प्रॉपर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ याद रखियो ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 किन्ने है 1 2 3 4 5 6 7 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 - 1 आ जाएगा फिर ठीक है प्रॉपर चेक नहीं होता बाकी सारे होंगे ए सबसेट बी का एन ए दिता होया एन भी दिता दैन वैल्यू ऑफ एन ऑफ बी माइनस ए ओके दिता होया ए सबसेट बी का हुण देख लो समझो इस गल नूं ए सबसेट बी का आ इहदा मतलब कि ए च जिन्ने भी एलीमेंट है ना जिन्ने भी ए च एलीमेंट है वो बी च हैगे ही हैगे ने ठीक है ना पर बी च उस तो ज़्यादा हैगे ने इन्नी गल जरूर आ ठीक है सो कुछ इदां दी डायग्राम कह सकते आपां आ ए आ पूरा जिहड़ा वड्डा है ए बी दे अंदर हैगा बी च ए दे टोटल 6 हैगे ने बी दे टोटल 10 हैगे ने ठीक है यानी कि 6 तो है तो 4 बचते हैं यानी बी माइनस ए कितना आ गया 4 ही आ गया 4 आंसर सिंपल है कुछ ज़्यादा औखा नहीं एन ए पी साढ़े को 25 दिता होया पी इंटरसैक्शन क्यू 5 दिता होया टोटल जी पी क्यू हैगा टोटल पी दिता 25 इंटरसैक्शन जी ये वाली तुहानूं देती 5 तो पूछ रहा तुहानूं पी माइनस क्यू यानी आ माइनस ही करनी हैगी ये तो 25 - 5 20 सिंपल डायग्राम तुहानूं याद है कुछ नहीं औखा होएगा बिल्कुल सौखे होंगे ठीक है बस इन्ने क्वेश्चन नैक्सट हैगा क्वेश्चन एक होर ओके एक्स स्क्वेयर 1 तो एक्स की आ जाएगा +- 1 यानी इस सैट दे विच एक तो 1 हो जाएगा एक -1 हो जाएगा इन्हें भी सॉल्व कर लो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा +- 1 तो एक्स स्क्वेयर एक बारी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू लवांगे 1 + -1 तो एक बारी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1 आ जाएगा सो इत्थों तो जो सॉल्व करा स्क्वेयर रूट हो जाएगा सो 1 आ जाएगा बट इधर जो करा ऊपर करा तो +- की आ जाएगा अंडर रूट -1 जो स्क्वेयर उधर जाके स्क्वेयर रूट लवांगे तो वह बन जाएगा एक बारी आयोटा एक बारी माइनस आयोटा सो ये किहड़े आ जाएंगे दूसरे सैट के आ जाएंगे आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 ये वाला सैट तो आई थिंक तुहानूं समझ आ गया मैं एक बार फिर दस देनी है पहला स्केयर इधर लेके जाओगे एक्स स्केयर इक्वल टू आ जाएगा +- 1 सो एक बार एक्स स्केयर मतलब इक्वल टू +1 एक बार एक्स स्केयर इक्वल टू -1 स्केयर इधर अगेन ओपन करोगे एक्स इक्वल टू +- 1 इनू जो अगेन ओपन करोगे एक्स इक्वल टू +- अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 की होंगे आयोटा यानी प्लस आयोटा माइनस क्योंकि मेरे +- भी है ना स्केयर तो जिधर ऊपर जाने सो ये साढ़े को दो वैल्यू आई +- 1 तो +- आयोटा सो ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਤੇ -1 ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 1 -1 ਆਇਓਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ a ਡੈਲਟਾ b ਹੁਣ a ਡੈਲਟਾ b ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a - b ਯੂਨੀਅਨ b - a a - b यानी a ਚੋਂ b ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਦੋ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਖਾਲੀ 5 ਬਚ ਗਿਆ a ਆ a ਚੋਂ b ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ तो b - a मतलब आ ਜਿਹੜਾ b ਆ ਟੋਟਲ ਇਹ ਚੋਂ a ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਦੋ ਇਹੀ ਦੋ a ਵਾਲੇ ਕੱਟਤੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਇਓਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ सो जो दोनों यूनियन कटांगे 5 नाल तां क्या आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा ही आ गया सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर बस इन्ने क्वेश्चन सी काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया मैंने कमेंट बॉक्स जो मैं तुहानूं क्वेश्चन क्या उन्होंने आंसर करना तो दसना तुहाडे कितने क्वेश्चन लई होए ठीक है जो कोई क्वेश्चन ना समझ आए दोबारा रिपीट करना क्योंकि ना तुहाडी बहुत क्लैरिटी होएगी तुहानूं बेसिक दे विच कॉन्सैप्ट जिहड़े क्लीयर होने फिर शुरू होणगे ठीक है जो एक बारी वीडियो देख के ना गल बने दो बारी देख लेना वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट करना थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो